Veer Surendra Sai University of Technology, formerly University College of Engineering Bulla, established in the year 1956, is largely synonymous with the growth and development of technical education of the state of Odisha. It is a proud moment for all of us that the university is celebrating its 13th convocation today. Convocation in the life of a university is a milestone. On this joyous occasion of the university's 13th convocation, we express our hearty congratulations to the young recipients of degrees, medals, and award winners. This is the day which gives us opportunity to pause for a moment and to reflect from where we started, where we are today, and where we aspire to be tomorrow. Engineers and scientists dream of executing great feats of constructions that put nature in the shade. For the graduates, it is fulfillment of their dreams. Dear students, you have justified and the golden opportunity of the university education by working diligently hard for your various degrees. Hearty congratulations and welcome to the 13th annual convocation of Veer Surendra Sai University of Technology, Pulla. Honorable Vice Chancellor Sir, I move that a grace of the Board of Management and Academic Council be passed that those who have, as per the regulation of Veer Surendra Sai University of Technology and have fulfilled the academic requirements and qualified for the Doctor of Philosophy, Master of Philosophy, Master of Technology, BTech and MTech dual degree, Master in Computer Applications, Master of Science and 5 years Integrated Master of Science by this university in 2020-21 be admitted to such degrees of the university. Please you that the grace be passed. Yes, sir. The grace is passed. Honorable Vice Chancellor Sir, I move that a grace of the Board of Management and Academic Council be passed that those who have, as per regulations of Veer Surendra Sai University of Technology and have fulfilled the academic requirements and qualified for the Bachelor of Technology, Executive BTech and Bachelor of Architecture by this university in 2020-21 be admitted to such degrees of the university. Does it please you that the grace be passed? Yes, sir. The grace is passed. भारत भूमि स्वनाम धन्य विजयता।
गौरवगाथा भाति भास्वरं चिरन्तनम् विदेशि सत्तां विरुध्य दत्तं निदर्शनम् गौरवगाथा भाति भास्वरं चिरन्तनम् जननी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी चारुहासमयी जननी 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 वन्दे उत्कल जननी भूतपयोधि विधौत शरीर ताडतमाड सुशोभित तीर शुभ्रतटिनि कुलशिखर समीर जननी 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 वन्दे उत्कल जननी सुन्दर मन्दिर मण्डित देश चारुकला बडि शोभित वेश पुण्यतीर्थ जय पूर्ण प्रदेश जननी 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 वन्दे उत्कल जननी कविकुल मौळि सुनन्दन वन्द्य भुवन विघोषित कीर्ति अनिन्द्य धन्ये पुण्ये चिर शरण्ये जननी 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 वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी। I declare the 13th convocation of Veer Surendra Sai University of Technology open. By request, Honorable Vice Chancellor Sir, to present his welcome address. His Excellency, the Governor of Odisha and the Chancellor of VSSUT Burla, members of Academic Council and Board of Management, degree recipients, medal winners, distinguished invitees, faculty members, staff and students of this university, members of print and electronic media, ladies and gentlemen. On behalf of the members of the Board of Management, faculty members, staff and students of VSSUT Burla, I extend a hearty welcome to His Excellency Honorable Chancellor Ganesi Lal Ji, an eminent educationist and philanthropist who is a constant supporter of the engineering and higher education of the state. We are extremely grateful to you, sir, for the encouragement and guidance from time to time for the growth of VSSUT. With great pleasure, I take the privilege to welcome you all
to the 13th convocation of VSSUT Burla, an annual event of a leading institution of higher learning in engineering in the state of Odisha and of the country. Today is an auspicious day of the VSSUT, and on this day of convocation, 1234 students will get their coveted degree, out of which 872 of them are BTech, 24 of them are PArch, 109 MTech, 26 MCA, 57 MSc, 26 dual degree, 36 integrated MSc, 7 MPhil, 30 executive BTech, and 47 PhDs. 24 university gold medals and 9 endowment gold medals will be conferred to the various students for their outstanding performances. In addition, 31 certificates of merits will be awarded to the toppers of different branches. Sri Satyajit Das, Electrical Engineering, has been the best graduate among all BTech students, and MS Vartika Singh has been the best woman graduate for the year 2021. My sincere congratulations to both of them and to all the medal winners and the degree recipients. It is my privilege to present before you that the developments and achievement of VSSUT during the last academic year. All of you know that we are all passing through a challenging phase of life for the last 2 years due to the COVID-19 pandemic, which has affected all aspects of our life. In spite of this, with the support of faculty and students, our semesters have been completed on time using mixed mode. Further, faculty and students also have stressed themselves in various fields of excellence. The validity period of NAAC accreditation of the university has been extended from 2021 February till the completion of the second cycle of assessment and accreditation process. I am happy to inform you that undergraduate program in production engineering has been accredited by the National Board of Accreditation for the year 2021-22 till June 2022. In addition, the postgraduate program in Power Systems Engineering has been accredited till 2021 June. The extension of the NBA accreditation period for 5 PG programs, namely Water Resources Engineering, Structural Engineering, Machine Design and Analysis, Production Engineering, and Communication Systems for 1 more year has been made, and it is extended till June 2021. University has also applied for accreditation to NBA for 1 UG and 5 PG programs. The AICTE has accorded an extension of approval to the existing BTech and MTech and MCA programs for the academic session 2021 and 22. The Council of Architecture has also accorded extension of approval to the existing BArch course for the academic session 21 and 22. VSSUT has signed Memorandum of Understandings with ASSOCHAM, New Delhi, PowerTech Consultants, Bhubaneswar, NITER, Kolkata, CPET, Balashore for consultancy, faculty exchange, training and skill development. The university is continuously improving its National Institute ranking framework, ranking at the national level in successive years, and it has been ranked 116 in 2021 in contrast to 119 in 2020. The university has created 2 new laboratories in the Department of Electrical and Electronics Engineering out of the RASA fund. The university is in the process of upgrading the laboratories by procuring new equipment also. The university has also procured equipment and software amounting to 2.10 crores through the TQIP fund for the procurement for the different laboratories of the university. The university has modernized its classrooms, seminar rooms, and has procured additional furniture for classroom and staff rooms.
The university has received funds under plan and non-plan grants from the government of Odisha, and we will have augmentation in infrastructure like administrative cum academic block, architecture department, sports complex, training and placement cell, for which work will be started soon. Several other projects like a 300-seater boys hostel, a new computer center, and a student activity center are on the verge of completion for use. TQIP cell has incurred about 3.85 crores in various activities, including equipment, learning resources, and R&D. The faculty have received 8 sponsored projects to the tune of 62.20 lakhs from various agencies like DST, UGC, AICT, and DRDO. 15 research projects have been completed during the period December 2020 to date, amounting 78.93 lakhs. The university has taken up 26 consultancy projects of the state and central government organizations and also from the industries worth 53.74 lakhs. An industry conclave was organized at the VSSUT campus on 22nd February 2021 with the experts from the industry to facilitate industrial consultancy, training, internship, and employment. A total of 480 research articles have been published by our faculty in various referred journals of repute, in addition to the 69 articles as book chapters in various specializations. 272 conference articles have been published during the last academic year. 7 different FDPs were conducted under the Atal scheme by the faculty in different departments. During the last academic year, 29 awards and different prizes have been received by our esteemed faculty members. Further, 21 patents have also been filed or published in different areas in the university. VSSUT has a vibrant alumni base, and we are very active in supporting VSSUT students as well as the VSSUT on various fronts like providing scholarship to needy students and facilitating placement. We have created a Dean Alumni position and recently to further activate our relations extensively. Students were present on the campus for a short duration during July to December. NCC and NSS activities have been performed during these days by the students actively. Cadet M. Vidyasagar Reddy bagged 3 bronze medals in .22 rifle sports shooting championships and in GV Mavalankar National Shooting Championship. For these achievements, he was awarded by the governor with the Governor Medal, Governor Best Cadet, and cash prizes. Mr. S. Krishna, a PhD scholar of Mechanical Engineering Department, has received the ASME student project of worth $500 from USA for the first time in the history of VSSUT. 3 different students have presented papers at different conferences. 48 different companies have also so far visited to the university for recruitment for the current batch of final year students, and 245 jobs have been offered by now. Dear students, my sincere congratulations to all of you on your incredible achievements and successfully graduating from VSSUT Burla. With all your support to the faculty, VSSUT could complete the courses through online mode and completed all the examinations successfully. You can visualize when you are graduating, the whole world is passing through the biggest challenge to combat COVID-19, and efforts are underway to bring life and livelihood to normalcy. Earlier, we had already many challenges to overcome, and this pandemic has become an additional challenge to all of us. I wish to gently remind all of you that your journey has just begun and your responsibilities
as an engineer have increased to support the growth of our economy and society. All of you know that education is the passport to the future, and the tomorrow belongs to those who prepare for it today. My sincere suggestions: focus on your dreams, be prepared to take calculated risk, and do not get deterred by failures. In fact, there is no such word called failure. Strive to realize your fullest potential. Dear students, Ronnie Oldham, a well-known sales executive, has rightly said, and I quote him, "Excellence is the result of caring more than others think is wise, risking more than others think is safe, dreaming more than others think is practical, and expecting more than others think is possible." I am sure each one of you will leave your unique footprints of excellence in the society. You are all the ambassadors of VSSUT Burla, and your success will bring laurels not only to your parents, to your family, but also to VSSUT Burla. My request to all of you: remember your alma mater wherever you are, and take part in the progress of VSSUT and your fellow juniors. Make VSSUT Burla as a part of your success, and celebrate your success with VSSUT. Best of luck to all of you, both on the personal and the professional front. Thank you all. Vande Utkala Janani. Jai Hind. The 13th convocation of the university has been called to confer various degrees and medals on the candidates who have been found fit for them. Let the candidates for the award of PhD, MPhil, MTech, BTech and MTech dual degree, MCA, MSc, integrated MSc, BTech, executive BTech and the BR degrees be now presented. Sir, I present you the candidates who have successfully completed the prescribed courses of study and have been found fit for the award of degree of Doctor of Philosophy. I pray that they in absentia be admitted for these degrees. Guru Prasad Mishra, Department of Electronics and Telecommunication Engineering. Kalyani Prushti, Department of Chemistry. Asutosh Rath, Department of Civil Engineering. Chinmay Kumar Nayak, Department of Computer Science and Engineering. Lakshminath Tripathi, Computer Science and Engineering. Nutan Saha, Electrical Engineering. Madhusmita Panda, Electronics and Telecommunication Engineering. Debabrata Rath, Production Engineering. Soumyaranjan Mishra, Electronics and Telecommunication Engineering. Shakti Prasad Mishra, Department of Physics. Amar Kumar Das, Mechanical Engineering. Hitesh Mahapatra, Computer Science and Engineering. Sumendu Narayan Mishra, Electronics and Telecommunication Engineering. Pratap Kumar Panda, Department of Chemistry. Sohal Kumar Pandey, Computer Science and Engineering. Satyanarayan Patnaik, Department of Chemistry. Dinesh Kumar Mishra, Metallurgical and Materials Engineering. Somnath Mishra, Electrical Engineering. Kumar Swami Simatri, Electrical Engineering. Anita Rani Brahma, Computer Science and Engineering. Kalyan Das, Computer Science and Engineering. SVS Nagendra, Mechanical Engineering. Manas Ranjan Jena, Electronics and Telecommunication Engineering. Himanshu Das, Information Technology. Kishore Kumar Sahu, Computer Science and Engineering. Radhamohan Patnaik, Information Technology. Kaushik Mishra, Computer Science and Engineering. Dushmanta Kumar Patnaik, Humanities. Khemasagar Sahu, Mathematics. Nivedan Panda, Computer Science and Engineering. Ashutosh Panda, Production Engineering. Saparjya Samadpita, Department of Physics. Tushar Kanta Samal, Computer Science and Engineering. Deeptimay Konar, Electronics and Telecommunication Engineering. Pramod Kumar Sethi, Department of Chemistry.
Vikas Meher, Electronics and Telecommunication Engineering, Santi Kumari Behra, Computer Science and Engineering, Satyabrat Hota, Electronics and Telecommunication Engineering, Dilip Kumar Sahu, Electrical Engineering, Prados Kumar Gantayat, Computer Science and Engineering, Trupti Sahu, Department of Physics, Amey Bhushan Sahu, Electronics and Telecommunication Engineering, Jyoti Prabha Das, Electronics and Telecommunication Engineering, Narsingh Deep, Mechanical Engineering, Bandita Sahu, Computer Science and Engineering, Chinmay Padhi, Department of Mathematics, Madhusudan Patro, Department of Mathematics. Sir, I present to you the candidates who have successfully completed the prescribed course of study and have been found fit for the award of the degree of Master of Philosophy, Master of Technology, Master of Technology Dual Degree, Master in Computer Application, Master of Science MSc and Integrated MSc, and I pray that they in absentia be admitted to these degrees.
By virtue of authority vested in me as the Vice Chancellor of this university, I admit the candidates presented to me in absentia to the degree of Doctor of Philosophy, Masters of Philosophy, Masters of Technology, Master of Technology dual degree, Master in Computer Applications, and Master of Science, and integrated Master of Science, and charge them to be worthy of the degree throughout their life. Sir, I present to you the candidates who have successfully completed the prescribed course of study and have been found fit for the award of the degree of Bachelor of Technology in Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Chemical Engineering, Electrical Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Telecommunication Engineering, Information Technology, Mechanical Engineering, Metallurgical and Materials Engineering, Production Engineering, Executive BTech, and Bachelor of Architecture. And I pray that they, in absentia, be admitted to these degrees.
By virtue of authority vested in me as the Vice Chancellor of this university, I admit the candidates presented to me in absentia to the degree of Bachelor of Technology, Executive BTech and Bachelor of Architecture, and charge them to be worthy of the degree throughout their life. Sir, the names of the graduate and postgraduate students who on fulfillment of prescribed conditions have been found eligible for the University Gold Medal have been printed in the souvenir published on the eve of the 30th convocation. I now present to you the candidates who have been awarded University Gold Medals. University Gold Medal for Best Graduate in Chemical Engineering, Yogesh Jaini. University Gold Medal for Best Graduate in Civil Engineering, Tribeni Majhi. University Gold Medal for Best Graduate in Computer Science and Engineering, Vartika Singh. University Gold Medal for Best Graduate in Electrical Engineering, Satyajit Das. University Gold Medal for Best Graduate in Electrical and Electronics Engineering, Abhilash Parjoshi. University Gold Medal for Best Graduate in Electronics and Telecommunication Engineering, Aparna Das Mahapatra. University Gold Medal for Best Graduate in Information Technology, Soumya Priyadarshini. University Gold Medal for Best Graduate in Mechanical Engineering, Shishir Kanta Jena. University Gold Medal for Best Graduate in Metallurgical and Materials Engineering, Aditya Das. University Gold Medal for Best Graduate in Production Engineering, Saurabh Kumar Naik. University Gold Medal for Best Graduate in Architecture, Anshuman Mohanty. University Gold Medal for Best Postgraduate in Civil Engineering, Sushri Paritwesa Pradhan. University Gold Medal for Best Postgraduate in Electrical Engineering, Rakesh Kumar Nanda. University Gold Medal for Best Postgraduate in Electronics and Telecommunication Engineering, Sashwati Mahapatra. University Gold Medal for Best Postgraduate in Mechanical Engineering, Dolly Tiwari. University Gold Medal for Best Postgraduate in Master in Computer Application, Subhasmita Behuria. University Gold Medal for Best Postgraduate in Master of Science in Chemistry, Krishnakanta Chaudhary. University Gold Medal for Best Postgraduate in Master of Science in Mathematics, Ankan Bora and Kirti Vidya Tiwari. University Gold Medal for Best Postgraduate in Master of Science in Physics, Smruti Swarup PC. University Gold Medal for Best Postgraduate in 5 years Integrated Master of Science in Chemistry, Subhendu Subhankar Purohit. University Gold Medal for Best Postgraduate in 5 years Integrated Master of Science in Mathematics, Smruti Ranjan Ponda. University Gold Medal for Best Postgraduate in 5 years Integrated Master of Science in Physics, Adyant Kumar Putta. University Gold Medal for Best Postgraduate in BTech and MTech Dual Degree in Civil Engineering, Tarang Kanungo. University Gold Medal for Best Postgraduate in BTech and MTech Dual Degree in Electrical Engineering, Arfan Sahu. Late A.N. Pujari Gold Medal for Best Civil Engineering Graduate and Narendra Prasad Memorial Gold Medal for Best Girl Students securing highest mark in Civil Engineering, Tribeni Majhi. Bipin Bihari Mishra Gold Medal for Best Mechanical Engineering Graduate, Shishir Kanta Jena. Priyavrata Ponda Memorial Gold Medal for Best Computer Science and Engineering Graduate and late Swarnalata Mohanty Memorial Gold Medal for Best Undergraduate Girl Student securing highest CGPA, Vartika Singh. Dr. Nityananda Patnaik Gold Medal for Best All-Rounder Graduate in Engineering,
late Professor J.N. Ponda and late Mrs. R. Ponda, Gold Medal for Best Electrical Engineering Graduate. Professor Nilakantha Patnaik Memorial Gold Medal for Best Graduate in Engineering, and Guru Prasad Memorial Gold Medal for Best Engineering Graduate Satyajit Das. Honorable Vice Chancellor Sir, the record of degrees may please be signed. The recipient of degrees may take the pledge. वीर सुरेंद्र शाह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयः समृत्तिन्नः स्नातकः स्नातक उत्तराक्ष वयमित्यं प्रतिश्रुतिपरावर्तामहे यत् विज्ञानप्रयोगव्रता निर्माणकलाविदो वा वयं स्वस्व कर्तव्यसाधने निरपहनुत साधुत्वसंरक्षणाय सर्वदा यतिस्मामहे। अधिगतप्रयुक्तिप्रज्ञा विज्ञानज्ञानादिकं सर्वं स्वदेशसेवायाम् अस्य च विश्वविद्यालयस्य गौरववर्धनाय च विनियोजयन्तु सर्वदा तत्परा भवेम। सर्वदा व्यष्टिगौरवं स्वचिद्वृत्तिधर्मश्च पालयतु मास्तवन्तः श्यामेति। वाचा कर्मणा च वयम् अनुगत्य विषये सर्वसंकीर्णतायाः सम्प्रद्यगतवन्तः संस्कारस्य च विरुद्धं सतर्का भवेम। अस्मद्देशस्य मौलिकम् ऐक्यं च सौगौरवं व्यमन्तरे लालयिष्यामः। Professor Ganeshi Lal was sworn in as the Honorable Governor of Odisha on 29th May 2018. He was born in Sirsa, Haryana on 1st March 1942 and holds a degree in English Honours. He further went on to gain a postgraduate degree in mathematics. He was brilliant in studies and stood first class first in FA, BA and MA class and was a gold medalist. After completing his education, he became an academician and served as a professor in various government colleges of Haryana between 1964 and 1991. Professor Lal was former state president of Haryana BJP, former chairman of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Haryana and former national president of the BJP disciplinary committee. He also actively participated in the Ram Janmabhoomi movement. Professor Lal was elected as MLA from Sirsa constituency in 1996 and became a minister in the Haryana Vikas Party BJP government in Haryana from 1996 to 1999. It is my proud privilege to request His Excellency Governor of Odisha and Chancellor Veer Surendra Sai, University of Technology Burla, to address the graduates. जय प्रभु जगन्नाथ। वीर सुरेंद्र साय विश्वविद्यालय की सम्माननीय ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, ऑनरेबल रजिस्ट्रार सर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी and the students, dignitaries, celebrities and other eminent personalities, इस दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और शुभेच्छा प्रस्तुत करता हूं। प्रसन्नता है मुझे आज न्यूज़पेपर में पढ़ने के पश्चात भी कि वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के 99% जो भी छात्र हैं उनका प्लेसमेंट
होना स्वाभाविक है। ये बहुत अच्छी बात है। वास्तव में यूनिवर्सिटी का अर्थ जो हिंदी में भी किया जाता है और वैसे भी किया जाता है वो विश्वविद्यालय है, अर्थात विश्व एक विद्यालय है। और विश्व एक विद्यालय है तो इस विद्यालय से, इस विश्व से हम क्या क्या सीख सकते हैं? वेल, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड, आप उसको टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, एजुकेशन कह सकते हैं, शिक्षा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसके कई तरह के नाम हैं। तो इस विश्व के विद्यालय से जो आदमी सीखता है उसको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। अब हम इसमें क्या क्या सीखते हैं? तो वही तक सीख सकते हैं जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, बुद्धि जाती है, मन जाता है। तो जहाँ तक बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट का विषय है और 5 तत्वों से ये विश्व जैसे बना है, उसको भगवान कृष्ण ने 7th चैप्टर के 4th, 5th, 6th श्लोक्स में कहा है कि भूमि रापो अनिलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति अयम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। अर्थात ईथर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, दीज आर माई 8 सेपरेटेड मटेरियल एनर्जीज। और उसके साथ उन्होंने एक और बात भी कही, अपरा अयम इति त्वन्याम प्रकृति विधि में पराम। मेरी एक और एनर्जी भी है जिसको सुपीरियर एनर्जी कहते हैं। वेल, दैट इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स हु आर एक्सप्लॉइटिंग द सोर्सेज ऑफ दिस मटेरियल नेचर। ये मेरी प्रकृति है, सुपीरियर एनर्जी है, सुपीरियर नेचर है, मटेरियल एनर्जीज है, मटेरियल नेचर है। इसको रामायण में भी कहा तुलसीदास ने। और भगवान राम से कलवाया लक्ष्मण को। जब लक्ष्मण ने पूछा ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा भाई गोचर जहाँ लगी मन जाई सो माया जाने उमम भाई। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जा सकती है, जहाँ तक तुम देख सकते हो, ये सब मेरी माया है, इल्यूशन है, ये असलियत नहीं है। इसलिए दुनिया के अंदर मैं और मोर तोर तय माया किन्ने सब बस जीव निकाया। इसको अंग्रेजों ने भी कहा, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट अवर पावर्स। व्हाट मैन हैज बिकम ऑफ मैन, मनुष्य क्या से क्या हो गया है। अर्थात भगवान राम भी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि इस विश्व के विद्यालय में ये जितनी भी चीज़ें हैं, ऑफ ऑल द क्रिएटेड बीइंग्स, दे हैव देयर सोर्सेज इन दीज टू नेचर, ईदर ऑल दैट इज मटीरियल और दैट इज स्पिरिचुअल। चाहे तो वह सब भौतिक है और चाहे सब वह आध्यात्मिक है। इससे मनुष्य अपनी सब चीज़ें ग्रहण करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जैसे ही इस पृथ्वी पर हम आते हैं, मैन इज स्वैलोड, निगला जाता है बाय द नी साइंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिकता के अंदर पढ़कर मनुष्य उसकी अज्ञानता में सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसा भगवान राम ने लक्ष्मण को बताया और ऐसा गीता भी कहते हैं। देयरफॉर गीता सेज एंड रादर डिलीवर्स द मैनकाइंड फ्रॉम द नी साइंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। आपने ज़रूर सोचा होगा, बहुत बार सोचा होगा कि डिस्पाइट सो मच ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, इतना टेक्निकल प्रोग्रेस होने के बाद भी इतना डिग्रेडेशन क्यों है, इतना डीह्यूमनाइजेशन क्यों है, इतना डीनेचुरलाइजेशन क्यों है, इतना डिवास्टेशंस क्यों है, इतना म्यूचुअल बिटरनेस क्यों है, इतना सपोर्ट इन वायलेंट एक्टिविटीज़ क्यों है, इतना मेंटल एग्नीज क्यों है, इतनी सोशल डिसहार्मनी क्यों है। आपने अवश्य सोचा होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा क्यों है। उसका कारण एक ही बताते हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग स्कॉलर्स, लिटरेरी पर्सन्स, job hunters and so many scientists, and these are all linked to some commercial motive। और ये सब के सब जो हम पैदा कर रहे हैं, जितने प्रोफेशनल्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी न किसी कमर्शियल मोटिव के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा क्या है कि ये जो दीक्षांत समारोह है ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? अनादिकाल से चलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, प्रभु जगन्नाथ कहते हैं कि सबसे पहले मैंने इस कॉन्वोकेशन को सन गॉड को दिया, फिर मैंने सन गॉड के बाद इसको मनु के पास आया,
मनु के बाद इक्ष्वाकु के पास आया, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम इट हैज़ बीन लॉस्ट एंड देयरफॉर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय फिर से दीक्षांत समारोह दिया और बताया। अब आप देखिए अर्जुन क्या है, अर्जुन के पास क्या नहीं है। अर्जुन के पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। उसने द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली, उसने देवराज इंद्र यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली, उसने माँ कामाख्या देवी यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय से उसने डिग्रियां ली, उसने पशुपतिनाथ विश्वविद्यालय से डिग्रियां ली। जितने भी उस प्रकार के उस समय विश्वविद्यालय थे, सभी विश्वविद्यालयों से उसने सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित किया। लेकिन वह अर्जुन युद्ध के समय भगवान कृष्ण को कहता है कि आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी, आई हैव लॉस्ट माई कंपोजर, आई एम bewildered, आई डोंट नो व्हाट आई एम टू डू, आई एम योर डिसाइपल, इंस्ट्रक्ट मी, मुझे शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे, शिष्य तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। वह अर्जुन शस्त्र छोड़कर भगवान कृष्ण से दीक्षांत समारोह दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है, सभी प्रकार की डिग्रियां लेने के बाद। ये जिस विश्वविद्यालय की आप बात करते हैं और मैं बात कर रहा हूँ, ये विश्व जो विद्यालय है, इसमें मैं वहीं तक सोच सकता हूँ जहाँ तक मेरी नज़र जाती है। कहाँ तक मेरी नज़र जाती है? सन गॉड तक जाती है। हो सकता है एलान मस्क, जेफ बीजोस, उनकी नज़र मंगल ग्रह तक जाती हो। मैं कल पढ़ रहा था कि 200 करोड़ वर्ष पूर्व मंगल ग्रह पर पानी था, 200 करोड़ वर्ष पूर्व। आज एलान मस्क, जेफ बीजोस, बिल गेट्स, माइकल जकरबर्ग, ये सब के सब जितने लोग हैं, ये हमको ग्रहों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ये मटेरियल स्काई तक जा सकते हैं और हाईएस्ट प्लैनेट इस मटेरियल स्काई में हाईएस्ट प्लैनेट जो है वो ब्रह्मलोक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जहाँ तक मनुष्य जा सकता है मटेरियल स्काई तक, उन प्लैनेट्स के अंदर यही 4 बातें रहने वाली हैं। क्या? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ये 4 बातें ही आप कर रहे हैं, यही 4 बातें हम करते हैं। अगर किसी मनुष्य से मैं पूछूं तुम जिंदगी में इस समय क्या चाहते हो, तो वो बोलेगा कि बीवी को सबसे महंगी डायमंड रिंग देना चाहता हूँ, डायना के से भी बढ़कर अच्छी रिंग होनी चाहिए, और अपने लड़के 4 हैं तो चारों को हेलीकॉप्टर देना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा उसकी दौड़ नहीं होती है। इसलिए ओशो कहता है कि मनुष्य समाप्त हो जाता है ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी पर आकर, उसके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पर समाप्त हो जाता है। मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, बॉडीलेस बॉडी। आप जरा महसूस करते होंगे कि आप जब एंजॉय करते हैं डिलीशियस पेन्स एंड डिलेक्टेबल फीस्ट, आपने बहुत अच्छा खाना खाया, मज़ा आ गया, बहुत मीठा मीठा दर्द होता है, अनेक प्रकार से होते हैं दर्द, मीठे मीठे, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता है। उनको कौन एंजॉय करता है? आपका शरीर करता है, आपका माइंड करता है, आपकी बॉडी करती है, आपकी इंटेलेक्ट करती है? नहीं। इसलिए भारत ने कहा कि इसको एंजॉय करने वाला एक है जिसको हम सोल कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, ट्रुथ कहते हैं, ब्लिस कहते हैं, ब्यूटी कहते हैं, नेचर कहते हैं, रियलिटी कहते हैं, ट्रांसेंडेंस कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, एग्जिस्टेंस कहते हैं, बीइंग कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं, लाइट कहते हैं, लव कहते हैं। कितने भी नाम दे सकते हैं, जितने भी नाम, इनसे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम सीरियल्स देखते हैं और हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि कमाल है, ये शिव भी लड़ रहा है, विष्णु से लड़ रहा है, हनुमान भगवान से लड़ रहा है। ये सब क्या है? ये क्यों लड़ते हैं? हम इनकी पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। उन्होंने कहा भाई, भगवान ने बताया, प्रभु जगन्नाथ ने बताया कि भाई जहाँ तक आपकी नज़र जाती है और जहाँ तक आप दौड़ सकते हैं, वहाँ तक सारी बातें ये होंगी जो पृथ्वी पर होती हैं। पृथ्वी पर बीमारी है तो वहाँ भी बीमारी है, पृथ्वी पर झगड़ा है तो वहाँ भी झगड़ा है। मटेरियल स्काईज तक सब प्रकार की बातें वहीं होंगी जो यहाँ पृथ्वी पर होती हैं, इस प्लैनेट पर होती हैं। विश्वविद्यालय में यही सब होने वाला है जो, तो फिर होना क्या चाहिए?
तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा अनंतमस्ति दिव्यानां विभूतिनां परंतपः। हे अर्जुन, आई हैव गॉट इन्फिनिटली मैनी मैनिफेस्टेशन, मेरे बहुत डिवाइन मैनिफेस्टेशंस हैं। और उस स्पिरिचुअल सकाई में जिसको के बाल कृष्ण ने माता यशोदा को अपना मुंह खोलकर दिखाया, जिसको भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र के दरबार में दिखाया, जिसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के रूप में दिखाया, वह वहां पर इन्फिनिटली मैनी प्लैनेट्स आर फ्लोटिंग, कितने ही अनंत प्रकार के ऐसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो स्पिरिचुअल सकाई के अंदर रहते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण ने इस अर्जुन को कहा कि तुम बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, ये जो मुखोटा तुमने पहना हुआ है ना, पर्सनैलिटी का अर्थ भी यही है। लैटिन की भाषा में पर्सोना को मुखोटा कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब नए नए मुखोटे बनाकर घूमते हैं ना बाजारों में, उनको बड़ा आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? वो जानते हैं कि ये मुखोटा मैं नहीं हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से हम सब जो लोग हैं, इन मुखोटों को ओढ़े हुए घूमते हैं और सोचते हैं कि हम ये मुखोटे ही हैं। इसलिए हमने विद्या को कहा, एजुकेशन को कहा कि सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वो है जो मुझे विमुक्त कर देती है, मुझे डिलीवर करती है। किससे? इन मुखोटों से मुझे परे हटा देती है। दैट एजुकेशन विच रिपील्स, विच डिस्ट्रॉयज मुझे बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट से परे जो ले जाए, उसको हम विद्या कहते हैं। इसी को विद्या ददाति विनयम कहते हैं। इसी को कहते हैं असतो मा सतो गमय। इसी को कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य में जो पूर्णता है उसको उजागर करने को शिक्षा कहते हैं। तमसुरमा ज्योतिर्गमय इसी को कहते हैं। अमृतस्य पुत्रा इसी को कहते हैं। मैन कंटेन्स द सुपरमैन एज ए पोटेंशियल इन मैन। मनुष्य में महामानव भरा पड़ा इसी को कहते हैं। मनुष्य अर्थ प्लैनेट पर नहीं रहता, मनुष्य प्लैनेट अर्थ स्वयं से है। ऋग्वेद भी तो यही कहता है कि यू आर द डिवाइन लाइट विद इन, यू आर द ट्विंकलिंग स्टार्स ऑफ द स्काई, यू आर द सस्टेनर ऑफ द अटर्नल वैल्यूज। इसी को जेडी कृष्णामूर्ति ने कहा कि यू आर ए लाइट, यू आर द लव, एंड यू कैन हैव ए ग्लिम्प्स ऑफ द लाइट इफ यू आर फ्री फ्रॉम द प्री कंसीव्ड formulations, preconceived conventions, conclusions, authorities, dominance, dogmas। जितना पुराना गंध भरा पड़ा है इस मुखोटों को उतार कर फेंक दीजिए। इसी को तो सब लोगों ने बार बार कहा, महर्षि अरविंदो ने बार बार कहा। और उन्होंने कहा, क्या कहा कि यू आर ए सुपरमैन, यू आर ए सुपरमैन, महामानव हो। द अर्थ यू ट्रेड इज ए बॉर्डर स्क्रीन्ड फ्रॉम द हेवन। The life you lead conceals the light you are। बुद्ध ने भी यही कहा, अपदीपो भव। भृगु संहिता में भी यही कहा कि आनंदमय कोश हैं। एस.एम. मून ने बहुत सुंदर कहा कि यू आर ए स्मॉल वॉकिंग यूनिवर्स, कॉस्मिक यूनिवर्स इज स्टेशनरी, सिंस यू कैन वॉक एंड एक्ट देयरफॉर यू कैन गवर्न द कॉस्मिक यूनिवर्स, बट देयर इज ओनली वन कंडीशन दैट यू शैल हैव टू, एंड योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू लव द नेचर। प्रकृति से मोहब्बत करिए, उससे प्यार करिए। इसका अर्थ क्या है? उसको भगवान कृष्ण ने बार बार कहा, अर्जुन को कहा, इंद्रियाणि प्राणी आहु इंद्रिय भय परो मना, मनसु ता परा बुद्धयो बुद्धे परा तस्तु सा। सेंसेस आर हायर देन द डल मैटर दैट इज योर बॉडी, माइंड इज हायर देन द सेंसेस, इंटेलिजेंस इज हायर, मच हायर देन द माइंड इट सेल्फ, एंड यू आर बियॉन्ड इंटेलिजेंस। आप इंटेलिजेंस से भी परे हैं, यू आर ए सोल। इसी को रामायण में भी कहा बार बार, तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यू आर द प्योर कॉन्शियसनेस, यू आर द कॉस्मिक ऑल परवेसिव। आप सब तरह से फैले हुए हैं। यू आर इन द ईस्ट, यू आर इन द वेस्ट, यू आर बिलो द अर्थ, अबव द अर्थ, most resourceful person on the earth। You are unique and you are beautiful। You were never before, you will never be after। ना पहले कभी थे ना फिर कभी होंगे। जैसे आज हैं होंगे वैसे हमेशा, लेकिन जैसे आज हैं वैसे नहीं होंगे, ना पहले थे। ऐसा करके सब ने, चाहे कोई ओशो हूँ
इरामिन भी कहते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स के मालिक हैं, कहते हैं कि जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, एस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, इफ यू अनरेवल दीज, यू अनफोल्ड दीज, अनश्राउड दीज, you will come to what? You will come to तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। महर्षि रमन ने भी यही कहा, दाउ आर्ट दैट, तू वही है। इसीलिए हमने कहा विद्या ददाति विनयम, आई डोंट एग्जिस्ट, आई एम द सिंपलेस्ट पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। सो मैं हूँ, ब्रह्मोस्मि, इफ आई एग्जिस्ट फॉर ओनली यू। ऐसा करके माँ ने भी कहा, श्री माँ ने कहा कि यू आर टू फाइंड द डिवाइन, यू सी, एंड यू आर द डिवाइन योर सेल्फ। केवल अपने को खोज करने की आवश्यकता है, ऐसा श्री माँ ने भी कहा। और इसलिए कहा यू एग्जिस्ट ओनली फॉर द डिवाइन, इन द सर्विस ऑफ डिवाइन, एंड यू एग्जिस्ट ओनली बाय बिकमिंग द डिवाइन। और आपको डिवाइन ही बनना है, ये कहा गया। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताते बताते साफ साफ कहा कि भाई जो तू टेक्नोलॉजी सीखे बैठा है, इस टेक्नोलॉजी से देख ले क्या हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी के आधार पर दुर्योधन को समझ में नहीं आया है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, और जिसको समझ में आया समझाने की कोशिश की तो वो भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान प्रभु जगन्नाथ ने समझाया, फिर से समझाया, और इसी बात को लगातार फिर जितने भी महापुरुष आए, चाहे बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे कबीर हों, नानक हों, चाहे दादू हों, चाहे पलटू हों, चाहे मीरा हों, चाहे सम्मून हों, चाहे भृगु संहिता हो, चाहे मोरारी बापू हों, जितने भी संत हैं, जितने भी इस समय विश्व में चल रहे हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं, कार्ल जंग को पढ़िए, आप किसी को भी पढ़िए, बड़े से बड़े फिलोसफर्स को, रोमिया रोलो को पढ़िए, शापेन हावेर को पढ़िए, सब लोग एक ही बात बार बार कहते हैं। अरिस्टोटल कहते हैं, प्लेटो कहते हैं, सोक्रात कहते हैं, सभी कहते हैं, कन्फ्यूशियस कहते हैं कि मैं लालटन लेकर, आई एम सीकिंग ए मैन विद द हेल्प ऑफ ए लालटन, द ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजाले में मनुष्य की तलाश कर रहा हूँ। मनुष्य क्या है? उसकी जाति मनुष्य है, उसका धर्म मानवता है, उसका देश अखिल विश्व है, और उसके ऊपर शासन करने वाला अगर कोई है तो वह प्रभु जगन्नाथ है, वह भगवान कृष्ण है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस दीक्षांत समारोह में मुझे टेक्नोलॉजी पढ़ना है, मुझे प्रौद्योगिकी में निपुण होना है, मुझे एलन मस्क से भी आगे जाना है, मंगल ग्रह पर जाना है, सब ग्रहों को देखना है। मुझे ताज्जुब होता है जब लोग कई बार कहते हैं कि ऐसे हनुमान सूर्य को खा गया क्या, सूर्य को फल समझकर खा गया क्या। श्री माँ से किसी ने पूछा था कि ऐसे पृथ्वी पर लोग कब आएंगे जो कितना भी बड़ा रूप बना सकते हैं और कितना भी छोटा रूप बना सकते हैं। तो माँ ने कहा कि इट विल टेक 300 ईयर्स। और जहाँ तक अग्नि को खाने का प्रश्न है, मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि जब माँ और बच्चे का जन्म होता है तब उसके सामने उस कमरे के अंदर हम अग्नि को क्यों जलाते हैं? बच्चा पहले दिन से पैदा होने से पहले जठरा अग्नि, पेट की अग्नि से भोजन प्राप्त करता है। पैदा होने के बाद सीधी सीधी अग्नि जलाकर उस अग्नि को खाने का प्रयास करता है। अगर मैं एक दिन का शिशु होने के बाद अग्नि को 10-12 घंटे तक लगातार खा सकता हूँ, तो मेरा रूप अगर विशाल और विराट हो जाए तो क्या फिर मैं सूर्य को नहीं लपक कर खा सकता क्या? इसलिए मैंने कहा कि जो मटेरियल सकाई तक जितने भी लोक हैं उनमें वो सभी बातें संभव हैं जो इस पृथ्वी पर हैं। प्रश्न एक आपके सामने उपस्थित अवश्य होगा कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स एंड यूनिवर्सल मैन। तो यूनिवर्सिटी का पर्पज है, इस विश्व का जो विद्यालय है इसका केवल मात्र एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है टू अनफोल्ड द डिवाइन पर्पज ऑफ दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड का डिवाइन पर्पज क्या है उसको तलाश करना है, और उसको तलाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने फिर बार बार उसका उपाय बताया है दीक्षांत समारोह में, जो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। आप अपनी एजुकेशन लीजिए, कितना भी लीजिए, बहुत अच्छे से लीजिए। अर्जुन ने भी लिया था, सभी ने लिया है, रामानुजन ने नहीं लिया, शाकुंतला ने नहीं लिया, जेडी कृष्णामूर्ति ने नहीं लिया, वो अनहद नाद को सुनते थे। आप भी जितनी प्रकार की जो एजुकेशन लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि आपकी ये एजुकेशन, जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं,
क्या होता है कॉन्वोकेशन? कॉन्वोकेशन का मतलब होता है वोकेशन। आप कुछ भी करिए, कोई भी प्रोफेशन लीजिए, कोई भी आप काम करिए, उसमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। द नीड इज ऑफ द आवर इज द कॉन्शियस प्लेनेट। ये जो पृथ्वी का ग्रह है ये चेतना में होना चाहिए साहब। कंप्लेंट से काम चलेगा क्या? कंपैरिजन से काम चलेगा क्या? कॉन्स्पिरेसी से काम चलेगा क्या? कंपटीशन से काम चलेगा क्या? करप्शन से काम चलेगा क्या? कनिंगनेस से काम चलेगा क्या? ये जितना सब धंधा पानी जितना सब चल रहा है, आज विश्व में क्या हो रहा साहब? यूक्रेन के साथ रशिया युद्ध करने को तैयार है, उधर इंग्लैंड और वो खड़ा हो गया, इधर चाइना हमारे इधर LAC के ऊपर हमारे आके खड़ा है। पूरे विश्व को अगर पूरा देखेंगे आप तो ये टेक्नोलॉजी के सुंदर सुंदर फ्रूट्स हैं, जीवन के काव्य पर प्रहार कर रहे हैं। इंद्रधनुष के रंग फीके पड़ रहे हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग आज धूमिल होते जा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर अंधेरा सा छा रहा है। क्यों छा रहा है? टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से छा रहा है? नहीं, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से नहीं छा रहा, पर टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट उसको जो दिशा देनी चाहिए वह दिशा उसको नहीं मिल रही। इसलिए कोई ना कोई सेंटर तो होना चाहिए जिस सेंटर को सब माने। ऐसा विश्व में कोई नहीं है, कोई थॉट नहीं है जिसको सेंटर माना जा सके, कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सेंटर माना जा सके। छोटे छोटे दूत आते हैं, कोई कोई भगवान का दूत आता है, नरेंद्र मोदी जैसा जो अपनी बात को कहने की क्षमता रखता है पूरे विश्व के अंदर। ऐसा ऐसा कोई ना कोई मैसेंजर आ जाता है, लेकिन वो कोई परमानेंट तो नहीं है। इसलिए लॉर्ड कृष्णा को, प्रभु जगन्नाथ को सेंटर मानना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जितने भी ऑपुलेंसीज हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, ये सब की सब उसको मिल जाती हैं जब एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पिरिचुअल एक्सीलेंस के साथ उसका योग बन जाता है। आपकी शिक्षा और आपकी दीक्षा, इनका इकट्ठा होना आवश्यक है। तो भगवान कृष्ण के साथ मिलने का क्या मतलब है? भगवान कृष्ण ने इसको बड़ा सुंदर भाषा में बताया है। 2 बार लिखा है, सर्वभूत हिते रतः। हम बोलते भी हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्व वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामय आत्मवत् सर्वभूतेषु। अर्थ इज माई मदर, आई एम हिज चाइल्ड, आई एम हर चाइल्ड। ऐसा हम बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। एकात्म है हम, विश्व के साथ हम जुड़े हुए हैं। E=mc² की बात करते हैं हम। और आज लेटेस्ट विज्ञान ने जो थ्योरी निकाला है वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का है, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर जितने सेल्स हैं 75 ट्रिलियन सेल्स, हर सेल के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एनर्जी है विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैटर। E=mc²। उस एनर्जी को भी मैटर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैटर डज नॉट एग्जिस्ट, मैटर इज डराइव्ड फ्रॉम कॉन्शियसनेस, मैटर इज टू मेक रेडी टू इन्वेस्ट मैनिफेस्ट इनटू स्पिरिट। माँ कहती है मैटर को स्पिरिट में बदलने का युग आ गया है। ब्यूटी, पीस, लाइट ये आकाश में घूम रहे हैं, पृथ्वी पर आना चाहते हैं, पर पृथ्वी पर उनको रिसीव करने के लिए अभी पृथ्वी तैयार नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा सर्वभूत हिते रता। यू एग्जिस्ट ओनली फॉर इन द सर्विस ऑफ डिवाइन। अब सबकी सेवा करने के लिए मुझको ही सब में देखो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज का मतलब ये नहीं है सबको छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जाओ। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जितनी भी स्पीसीज हैं, मूविंग और अनमूविंग, मूविंग और नॉन मूविंग, दे एग्जिस्ट थ्रू मी। जितना भी चल अचल है ये सब के सब मेरे द्वारा ही संचालित है। मया अध्यक्षेण प्रकृतिम सूयते स चराचरम। ये पूरा ब्रह्मांड इसका संचालन करता मैं हूं, मेरे अलावा एक पत्ता भी कहीं हिल नहीं सकता है, मैं ही तो करता हूं। इसलिए इस 84 लाख स्पीसीज की सेवा करना, पूजा करना, अर्थात मेरे कारण किसी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, इसको भगवान कृष्ण ने कई श्लोकों में कहा है। मैं बोलने के लिए एक आधा सेंटेंस बोल सकता हूं। यज्ञः कर्म सब उद्भव है, परफॉर्मिंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज परफेक्शन, जिसको विवेकानंद ने कहा एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, उसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज। फिर इसको कहा है स्वे स्वे कर्म अभिरत्ता संसिद्धिम लभते नराम कर्मणा एवि संसिद्धिम
लभते जनक आदि, जनक जैसे लोग भी, महर्षि जनक, राजऋषि जनक जैसे लोग भी अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद संसिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए आपको अगर विश्व को एक करना है, विश्व को अगर एक करने का प्रयास करने में आप लगे हैं, तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें कोई शक नहीं। बट दिस टेक्नोलॉजी शुड बी डेडिकेटेड एट द अल्टर ऑफ लॉर्ड प्रभु जगन्नाथ। जो कुछ आप सीखते हैं, जो कुछ आप करते हैं, उसका केंद्र लॉर्ड प्रभु जगन्नाथ को मान लीजिए। अगर प्रभु जगन्नाथ से एलर्जी है, आपको डिवाइन शब्द से एलर्जी है, आप इसको मानते नहीं हैं, आप नास्तिक हैं, एग्नोस्टिक हैं, एथियस्ट हैं, तो अपनी माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जितना कुछ आप करते हैं, जो कुछ आप प्रयास करते हैं, उसको माता के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर भगवान को नहीं मानते हैं, तो यूनिवर्सल मैन बनने के लिए जिसके कारण आप इस पृथ्वी पर हैं, मित्रों, कोख और गोद को बदला नहीं जा सकता। कोख आप नहीं बदल सकते। जिस भूमि पर आप पैदा हुए हैं, उसकी गोद में आप खेल कर बने हुए, उसको नहीं बदल सकते। इसलिए पूरे की पूरी जितनी भी आपकी एनर्जीज हैं, पोटेंशियलिटीज़ हैं, जैसे महर्षि अरविंदो कहते थे कि जितनी मेरे अंदर पोटेंशियलिटीज़ हैं, प्रतिभाएं हैं, मैं माँ भगवती के चरणों में उसको समर्पित करना चाहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली को किया, ऐसे हमारे जितने भी लोग थे, उन्होंने अपनी माता के चरणों में समर्पित किया है। तो डिवाइन शब्द से अगर परहेज है विश्व को या किसी और को, प्रभु जगन्नाथ के शब्द से किसी को परहेज है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा से किसी को परहेज है, तो जिस जिस इष्ट को आप मानते हैं और किसी को भी नहीं मानते, तो माता के श्री चरणों में अपनी उन सभी चीज़ों को अर्पित कर दीजिए। माता को ही सेंटर बनाकर आप चलना शुरू कर दीजिए, और मुझे लगता है कि उसके आधार पर ये विश्व एक बनने में आसानी हो जाएगी। द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड विल बी द रिलीजन ऑफ सर्वभूत हिते रता। ये पूरा विश्व जिसमें आसमान में कोई लकीर नहीं है। सुनीता विलियम 187 डेज के लिए स्पेस में रही। उसने कहा मैंने कोई नीचे बॉर्डर्स नहीं देखे, बाउंड्रीज नहीं देखी, बैनर्स नहीं देखे, बॉन्डेजेस नहीं देखे, किसी प्रकार के मैंने कोई लकीरें नहीं देखी हैं। ये जो दुनिया के अंदर लकीरें खिंची हुई हैं, ये लकीरें अगर समाप्त हो सकती हैं, तो जैसे कहा, किसने कहा? जेडी कृष्णामूर्ति ने कहा कि इसके आधार, लव के आधार पर ये खत्म हो सकती हैं। प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिसको भगवान कहा जा सकता है, डिवाइन कहा जा सकता है। उसके आधार पर ये लकीरें खत्म हो सकती हैं और ये विश्व एक सुंदर पुष्प की तरह फिर से खिल सकता है। वैसे ही जैसे कहते हैं महाविष्णु क्षीर सागर में उसकी नाभि से कमल का फूल खिलता है, जिस पर ब्रह्मा विराजित होता है। लक्ष्मी भी कमल के फूल पर रहती है, हाथी भी कमल के फूल को लेकर लक्ष्मी को परोसता है। तो उसी प्रकार से ये कमल का फूल के समान पूरा विश्व खिल सकता है। मैं समझता हूँ इस दीक्षांत समारोह पर दो चीज़ें जो मैंने आपके सामने निवेदन की हैं कि मनुष्य के अंदर डिवाइन पावर है, इन्फिनिट पावर है, उसकी अनंत शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों को कोई माप नहीं सकता है। इसलिए उन शक्तियों को सभी को आइए हम संकल्प लें कि इस दीक्षांत समारोह पर हम प्रभु जगन्नाथ के चरणों में, उसकी बनाई हुई इस दुनिया जो कि चर और अचर, मूविंग या नॉन मूविंग, उनके चरणों में ये अपनी सेवाएं समर्पित करें। और मुझे लगता है इससे ही पूरा विश्व जो है एक बन सकेगा। और आप अपनी रूम्स के अंदर जो आपका स्टडी रूम है, अगर उचित समझें तो ये लिख सकते हैं कि अपनी सुबह के सूरज उगाता हूँ खुद, चिरागों के सहारे मैं कभी जीता नहीं हूँ। बहुत अच्छे गीत बने हैं दुनिया में, कितने कितने प्यारे गीत बने। एक तू ना मिला सब दुनिया मिले, तो फिर क्या? एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले तो भी फिर क्या? इसको बाइबल ने भी कहा कि व्हाट डू यू गेट इफ यू गेन द होल ऑफ द वर्ल्ड एंड लूज योर सोल। तुम्हारी आत्मा ना रहे और दुनिया प्राप्त हो जाए तो क्या? तुम्हें पा के हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें भूल कर फिर से खुद अपने पास आ गए हैं। ऐसा मनुष्य न बने, और इस प्रकार से मनुष्य वह बने जो मनुष्य मनुष्य के लिए बनता है। इस प्रकार का भाव इस दीक्षांत समारोह पर मैंने कहने का निवेदन किया है। आपको उचित लगता हो, ठीक लगता हो
तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। I declare the 13th convocation of VSSUT Burla closed. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।